अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। नाजरीन, जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी हर वीक माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके ई आवाज़ टीवी के उपर हाजिर होने हाँ। ये जिहड़ा प्रोग्राम है तुसी संडे नू रात नू 8 बजे, मंडे नू दोपहरे 3:30 बजे और ट्यूसडे नू दोपहर 12:30 बजे ते वैनसडे नू रात नू 9:30 बजे देख सकते हो। माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ये असी BNC मैडिकल सेंटर के ताबन दे नाल पेश करते हैं। फर्स्ट BNC मैडिकल सेंटर है कि BNC मैडिकल सेंटर ब्रैम्पटन दे विच पहली बार एक मैडिकल सेंटर असी खोले है जिसका नाम असी BNC रखे है। BNC का मतलब की है, ब्रैम्पटन दे विच दो रोड्स ने, एक नू असी ब्रैमली कहने हैं, दूसरी नू असी कंट्री साइड कहने हैं। जिथे ये दोने रोड्स मिलदियां ने ब्रैमली ते कंट्री साइड, वो दोनों रोड्स के नाम के उपर असी इहदा नाम BNC मैडिकल सेंटर रखे है। ये जिहड़ा मैडिकल सेंटर है पहली बार ब्रैम्पटन च, मिसिसागा, ऑरेंजविल, ऑटवा, टोरंटो, wherever you can go, you won't get it that type of facilities under the same roof। मसलन असी BNC मैडिकल सेंटर दे विच फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टर नाल रिलेटेड हर तरह की सर्विस देने हैं। नॉट ओनली दैट, वी हैव अर्जेंट केयर, walk-in cleaning, family practice is there। Our blood lab open 7 days a week, and we have all allergy tests, and we have counseling services now for the last 2 months। Dr. Fanny, who is MD as well as Master of Counseling, she is a professional lady who teach us, who tell us, who solve our problem for the mental issues like when we have stress, anxiety, depression, suicidal attitudes are there। So instead of to go to the psychiatrist and get it the medicine, ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पर काउंसलिंग ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ 1-to-1, ਕਿਉਂਕਿ she is a professional from medicine point of view as well as from counseling point of view। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਵਾਰ ਕਾउंसलिंग ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ IDA ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ओपन 365 डेज अ वीक। हुण तुसीं पता ही है भी ईस्टर का कल तो लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो सारियां ऑलमोस्ट 90% 95% क्लीनिक्स बंद होणगियां, पर साडा जिहड़ा BNC अर्जेंट केयर है वो खुला होएगा। तो इस तो इलावा साडे कोले BNC दे विच BNC विजन सेंटर भी है, एंड वी हैव 4 आई डॉक्टर्स टू, एज वेल एज वी आर सेलिंग ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड ऑल टाइप्स ऑफ ग्लासेस विद गारंटीड 3 थिंग्स। नंबर 1, प्राइस वाइज इट्स ओपन दैट यू विल पे लेस। नंबर 2 is that hospitality, you will see it over there, and third one is like our professional optician Cynthia Neal, whatever she says, commas and full stop, you will get it. There is no business trick at all। So with these type of activities but we are providing under the BNC medical center, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ BNC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 770 AM ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ इस तरह भी वैद होण जां होम्योपैथी दे होण जां कोई इस तरह नैचुरोपैथी दे होण, नहीं, वो एलोपैथी दे नाल कैनेडियन एंड अमेरिकन लाइसेंस हुंदे ने। कई बार वो फैमिली डॉक्टर्स हुंदे ने, कई बार वो जिस तरह कैंसर दे उत्ते है जां कोई ENT दे उपर है जां डिफरेंट जिहड़े स्पैशलिस्ट ने उन्हां नूं भी असीं लैके आउने पर्टिकुलर बीमारी दे उत्ते असीं डिस्कस करदे हां। पर कदे असीं 10% पॉलिटिक्स दे उत्ते भी गल कर लैंदे हां, पॉलिटिक्स दे गल कर लैंदे हां, स्पिरिचुअलिटी दे उत्ते गल कर लैंदे हां। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੀਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਫਰਦਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਬੋਥ ਲੇਡੀਜ਼। ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ both of you। Thank you। So first of all, can you pronounce your name, because I know that I pronounced it wrong। So tell me about yourself, that how long you've been in Canada, what is your mission, and what is you are talking about the learn to meditate, regarding the meditation, what is that? Yeah, good morning everybody। मेरा नाम मीनल है, मीनल व्यास। मैं कनाडा में तो वैसे 3 साल से हूँ, लेकिन इंडिया में ये जो इंस्टीट्यूट है उसमें 22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हार्टफुलनेस मेडिटेशन। और एज ए ट्रेनर
मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। हम लोगों को स्ट्रेस से रिलैक्सेशन कैसे मिलता है वो सिखाते हैं, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू बी रिलैक्स्ड and how to evolve. That is the ultimate goal of our human life. So gradually we are learning that we are practicing meditation with heartfulness way. We have techniques and tools for this meditation. After all, practice is everything. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। पढ़ने से, सुनने से, जानने से कुछ नहीं होने वाला। हमें खुद कुछ करना है, कुछ बनना है। तो बनने के लिए हमें ये ध्यान सीखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं भी आई एग्री विद यू, लाइक वी हैव टू डू प्रैक्टिस, राइट? लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल द फूड, that okay, how to make the food, just read the books only, you won't get it any, you know, your thirst और जो आपकी भूख है वो खत्म नहीं हो सकती जब तक आप खाना बनाकर उस मेथड के हिसाब से अंदर नहीं लेते। इसी तरह मेडिटेशन भी, ऑफ कोर्स मेडिटेशन की भी यही है कि इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू गेट प्रैक्टिस, जैसे बच्चा एजुकेशन लेता है, जितनी ज़्यादा वो मेहनत करता है उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। जो मेरे वर्गा नहीं पढ़ता तो ऐसे उसे गेम खेलता है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द टीचर अनाउंस द रिजल्ट इज जीरो बिकॉज आई नेवर प्रैक्टिस, आई नेवर वर्क हार्ड। सो सेम थिंग इज मेडिटेशन। सपना जी, you are welcome as I told you, but can you tell me something about that, how you are associated with this organization? Yes, first of all, thank you for giving the opportunity, Dr. Ravi. We are really pleased. And for me, I started with this institution 10 years ago. 10 साल पहले मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है wherein we learn how to regulate our mind, क्योंकि एक माइंड ही है जो चैटर बॉक्स है, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आइडियाज़ हमारे को बताता रहता है कि ये करें वो करें, माइंड कभी चुप नहीं रहता है। सो वी लर्न द टेक्निक टू रेगुलेट द माइंड। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं। एंड सेकेंडली वी लर्न हाउ टू कनेक्ट विद द हार्ट, क्योंकि सब कुछ हमारे को आंसर हार्ट से मिलते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, हमारा हार्ट है जो सबसे पहले हमें आंसर कर देता है। अगर हम सही कर रहे हैं तो हार्ट कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हम सही कर रहे हैं। अगर गलत करते हैं तो हार्ट है जो सबसे पहले इंडिकेशन देता है, नहीं आप गलत करने वाले हैं, रुक जाइए, एक इंडिकेशन आता है। तो वी ट्राई एंड लर्न टू कनेक्ट विद हार्ट। दिस इज हार्टफुलनेस वे। Okay, can you little bit explain the difference between brain, heart and mind? Can you explain? Because you are using the word that mind and heart. Heart, according to me, we are just discussing as a family. Heart is just like a spiritual substance. You can, you know, heart का तो वैसे भी सर्जरी होती है, टच भी कर सकते हैं कहाँ पर है, पर इसके बीच में जो फीलिंग है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो होती है, वो मेरे ख्याल माइंड के साथ कनेक्टिविटी है ना। तो माइंड और ब्रेन में, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल दे वोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन। वो कहते हैं दिमाग की बात करनी है या मेरे हार्ट की बात है। हार्ट इज ए फिजिकल सब्सटेंस, बट इन दैट वन वट एवर वी हैव द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और वेव्स इन रफ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड माइंड। तो आप जरा प्लीज एक्सप्लेन करोगे, जैसे आपने बोला कि अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? या सी टू बिकम लाइक हिम, हमें उनके जैसा बनना है। उनके जैसा मतलब कि परमात्मा जैसा बनना है। बहुत बड़ा गोल है, बहुत ऊंचा गोल है। सपोज वी कैन नॉट अचीव इन दिस लाइफ, लेकिन हमें गोल तो अल्टीमेट रखना है। तो उनके जैसा बनना है अगर, तो क्या करें, कैसे करें, और हम जो कर रहे हैं उसमें बाधाएं क्या है। हमारी उन्नति में हमारी इच्छाएं बाधक बनती हैं। हमारी जो विलिंगनेस हमें रोकती है, हमारी डिज़ायर्स होती है, वांट्स होती है, वो हमें हर बार रोकती है। तो वो कहाँ से आती है, हमारी इच्छाएं कहाँ से आती है? द थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम माइंड। हमारा मन है जो हमेशा भागता रहता है इधर उधर। तो मन को अगर काबू में करना है, तो जैसे जंगली घोड़े को आप ट्रेन करते हो, उसकी काबिलियत बढ़ जाती है, फिर वो जैसा आप चाहो वैसा करता है। द सेम वे वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड्स with this practice of meditation and
दिस मेडिटेशन इज अलॉन्ग विथ ट्रांसमिशन। सो ये प्राणाहुति के साथ हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उससे हमारे विचारों को हम रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है, मतलब कि हमें जो काम करना है उसके ही विचार आएंगे। द फ्लो ऑफ थॉट विल बी रिड्यूस्ड एंड वी विल रेगुलेट देम। तो जब मन का विचार, हम मन को काबू में करते हैं, हमें जो काम करना है वो ही हम सोचेंगे, वो ही हम करेंगे, तो वो काम अच्छे से होगा, परफेक्टली होगा, उसका रिजल्ट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो धीरे 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 हम जो गोल बनाएंगे उसके ऊपर हम पहुंच सकते हैं। मेरा ख्याल है जो मैं आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ऑल कन्वर्सेशन, जैसे गुरबानी में आता है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। माइंड एक्चुअली जो है वो उसका जो सोर्स है वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो इट अटैच विद अवर 9 आउटलेट्स, ज्ञान इंद्रियों के साथ मिला हुआ है, तो इसके पीछे भाग रहा है, इसलिए इसको कंसिक्वेंसेस भी हमारी आत्मा को वही भोगने पड़ते हैं। जब हम प्रैक्टिस के द्वारा अपने माइंड को सीधे रास्ते पर ले जाते हैं तो वही जो हमारा माइंड है वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर देन वो गो टू द डिफरेंट डायरेक्शन, वो चाहे उसको पता चल जाता है कि मैं तो आई एम पार्ट ऑफ सोल, तो उसके हिसाब से फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है और भी फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता सकता हूँ आपको भी। अगर कोई लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, तो हम उसको बोलें भी क्योंकि तेरी शादी नेक्स्ट मंथ फिक्स हो गई, तो यू कैन जस्ट डिटैच yourself from your friends and all those small playing, वो कभी नहीं करती। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो अपने ससुर के साथ, अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो इधर डिटैच हो जाती है। तो यही मेरे ख्याल आपका माइंड का कॉन्सेप्ट है कि जब हम अंदर उसको लगा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्डली जो है उसके साथ डिटैच हो जाएगा। जब वो अंदर अटैच हो जाएगा तब वो परमात्मा की तरफ भागता है। सपना जी, आप कुछ कहना चाहते हो और इसके बारे में? मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये सब थॉट्स हैं जो माइंड में आते हैं, वो थॉट्स हैं, और अगर हम उनको अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह ट्रीट करें, जैसे हमारे घर में कोई अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया तो हम उसको ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं क्योंकि हम उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। तो इनको भी थॉट्स को हम ये सीखते हैं कि ये अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, इनको हम अटेंशन नहीं देते हैं और धीरे 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 हम अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपने बताया। तो माइंड एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आता है थॉट्स को लेके, जब हम अटेंशन ही नहीं देते हैं, जब उनको मान्यता ही नहीं देते हैं, अपने आप हम अंदर की तरफ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें बताओगे कि हमारा कुछ जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कंपनी का, सोसाइटी का भी असर है माइंड की तरफ? अगर हम जैसी संगत होती है, कंपनी होती है, अगर शराबियों के साथ, जुआ खेलने वालों के साथ और जो प्रोस्टिट्यूशन वहाँ जाते हैं हम, तो उसका राइट वे माइंड पर असर होता है। नेगेटिविटी तो राइट वे कैच करता है, लेकिन उसकी कोई असर जो सोसाइटी में, जैसे अच्छे लोगों को, जैसे आप अच्छे लोग हमारे सामने बैठे हो, है ना, आपकी कंपनी से कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर मुझे पॉलिटिशियन जब आते हैं तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हो जाता है, तो कंपनी का भी माइंड पर असर होता है कुछ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आप सूर्य की गर्मी ले सकते हो, अगर बर्फ के नज़दीक बैठोगे तो ठंडक लगेगी, है ना, बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे। द सेम वे ये जो पर्सनालिटी होती है, हमारी इनर ऑरा जो होती है, वो अफेक्ट करती ही है और उसे हम ही बनाते हैं। अपने विचारों से हम उसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, तो वो हमारे हाथ में है। ये जो हमारा सिस्टम है हार्टफुलनेस, ये ब्यूटीफुली, बहुत सिंपल है और ब्यूटीफुली सिखाता है धीरे 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 हमें अपने आप को कैसे करेक्ट करना है। देखिए, हम कुछ नकारात्मक सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो वो होगा। जैसे मैं कुछ उठा रही हूँ तो गिर जाएगा, वो अवश्य गिरेगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, कैसे गिरेगा, है ना, मैं उठा सकती हूँ, मैं आई कैन डू इट, तो वो होगा। तो जैसे कि आपने बताया है, अभी आपने ब्यूटीफुल हमने स्टार्ट करना है, पॉजिटिविटी बताई है। मैंने और भी कुछ पूछना आपको, क्योंकि आपका तो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि आपके विचार सुनकर, वैसे भी आपकी पर्सनालिटी तो हम्बल है ना, होली पर्सनालिटी लग रही है। तो हम वी जस्ट वांट टू टेक लिटिल बिट स्मॉल ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फर्दर। सो प्लीज डोंट गो अवे, वी आर कमिंग सून बैक। थैंक यू।
ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਵੀ ਲਰਨ ਇਟ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਸਪਨਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ that is your school and you teach us how to do meditation. So please go ahead in detail. Yeah. So I will start with a question. So is a living guru needed in your personal life? Yes. Yes. So कोई भी छोटे मोटे काम के लिए हम कोच रखते हैं, गाइड लेते हैं, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें अगर हमें कोई कैपेबल गुरु मिल जाता है ना, कोई कैपेबल बंदा मिल जाता है ना कि जो पहुंचा हुआ है, तो हमें भी पहुंचा देता है। यहाँ पर बात आती है फेथ की। अगर हम पूरी शिद्दत से उनको चाहते हैं तो नेचर हमें दे देती है। एक बार हमें गुरु मिल जाते हैं, फिर वो बताते हैं, वैसे हम करते जाते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है 1945 से शुरू हुआ है, और उस वक्त के जो हमारे आदि गुरु थे लाला जी साहब, श्री रामचंद्र जी, उन्होंने ये शुरू किया था कि कोई भी साधक अगर मोक्ष पाना चाहता है, रियलाइजेशन पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। संसार में रहकर ही करना है, हमें संसार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संसार सबसे बड़ी स्कूल है जो हमें हर चीज़ सिखाती है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, बाहर के परिबलों से हम मुक्त होते जाते हैं, ये आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ते जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों पक्ष, दोनों पंख मजबूत होती है और हम उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं मतलब कि हम ऊंचाई को छू सकते हैं, मतलब कि हमारा विजडम बढ़ जाता है, हम ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा देख पाते हैं। तो ये सांसारिक प्रॉब्लम्स, मुश्किलें जो आती है ना, उसमें से हम यूँ निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एक धैर्य आ जाता है। जैसे आपने कहा कि लिविंग गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई कैन जस्ट मेंशन इट दैट इट्स वन ऑफ द आयत इन कुरान दैट इफ यू गो फॉर ए हज, फाइंड ए हाजी विद यू, बी ए हिंदू, मुस्लिम, तो डजंट मैटर, डोंट लुक आफ्टर देयर कास्ट, जस्ट फाइंड समबडी हु ऑलरेडी हैव द हज। सो लिविंग गुरु वही होगा जिसने खुद अपना एक्सपीरियंस करके वो उस मंजिल को पार कर लिया हो, है ना। उसको गुरु बोलो, टीचर बोलो, फ्रेंड बोलो, डजंट मैटर, तो लेकिन वो परफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जैसे गुरबानी में भी आता है, जे सौ चंदा उपजे, सूरज चढ़े हजार, इते चानन होवें गुरु बिन घोर अंधार। सो जिन्ने मर्जी सूरज चंद, जेड़ा गुरु हैगा, गुरु मीन्स टीचर्स, है ना। जैसे मदर हमारी बचपन में गुरु ही होती है, वो सिखाती है कहाँ बैठना है, कैसे करना है, कैसे वो करना है। स्कूल में जाते हैं, टीचर हो जाती हैं। विदाउट टीचर, विदाउट गुरु यू कांट गेट इट, एंड स्पिरिचुअली इज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड इट्स my faith too, because that without guru, but it should be perfect and it should be genuine guru. But in India, you know, you can find as many guru as you want in one city, right? So Sapna ji, adding to this, जैसे आपने गुरु की बात की, ट्रेनर की बात की, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जिससे सब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम घर में बैठे, अगर हम सोचें कि मैंने वेट कम करना है और वो मशीन, ट्रेडमिल सब साइड पे पड़ा है, लेकिन वो हम अपने आप नहीं कर पाते। When we go to the gym, ट्रेनर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक एनर्जी आती है, एक वाइब्रेशन आती है, कनेक्शन होता है, गाइडेंस मिलती है, एंड वी कैन सी द चेंज इन आवरसेल्फ। हमें लगता है कि अरे वाह, यहाँ पर आकर रिड्यूस हो गया,
because we are connected with the right person, he can guide us, he knows it. So हमें एक सही ट्रेनिंग, एक सही रास्ता मिल जाता है. तो वही एक सिंपल एग्जांपल, सही गुरु जब मिल जाता है तो हम सही रास्ते पे आगे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं. और जैसे हम वाइब्रेशंस की, एनर्जी की बात कर रहे थे, सेम थिंग, अगर हम डिस्क में जाते हैं, चाहे हमें डांस नहीं भी आता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं हिल लेते हैं, क्योंकि वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन एक ऑरा ऐसा बन जाता है. जिम में जाते हैं, घर में इतना ट्रेडमिल पे नहीं भागा जाता है, बाकी सबको देखते हैं फिर भागना शुरू कर देते हैं. एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है. ऐसे ही जब हम ग्रुप मेडिटेशन में या ऐसे गुरु के पास जाते हैं, वो वाइब्रेशन है जो हमें अट्रैक्ट करती है, उसमें हम डूबते हैं. बिल्कुल ठीक है. जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था कि इफ द आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शुड बी फुल ऑफ लाइट, कि हमने यहाँ पर पहुँचना, थर्ड आई पर पहुँचना है, तो वहाँ से अंदर हमारा स्पिरिचुअल जो है जर्नी स्टार्ट होती है. नीचे स्टार्ट नहीं होगी. तो ऐसा अपने माइंड को सीधा करके मेडिटेशन के द्वारा कंसंट्रेट करके आपने थर्ड आई पर ले जाना है, वहाँ से आगे स्पिरिचुअल होगी. मैं मीनू जी आपसे पूछ सकता हूँ, इफ यू फील कंफर्टेबल दैट वी हैव टू गो, the ultimate goal of our life is to get salvation or mukti or merge with the Lord. So लोगों को बहुत confusion है कि God किसको कहते हैं. Right. So what is the concept of God according to you? See, God is omnipresent. हम जानते हैं ना, परमात्मा तो सर्वत्र है. मतलब क्या सर्वत्र? God omnipresent मतलब क्या? हम क्या समझते हैं? सब जगह उपलब्ध है मतलब क्या? God is like an energy. जैसे कोई शक्ति है ना, जिसको हम डिवाइन पावर बोलते हैं, जो बाहर है और वो हमारे अंदर भी है. गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हमारे अंदर भी है. जो पावर बाहर है वो हमारे अंदर भी है. और जो डिवाइन पावर है वो बाहर हम उसे परमात्मा बोलते हैं, जो हमारे अंदर है उसे हम आत्मा बोलते हैं. हमें बाहर परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है. परमात्मा हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है. हमें सिर्फ उसे महसूस करना है. अगर हमने आत्मा को महसूस करना शुरू कर दिया, आत्मा को समझना शुरू कर दिया, तो समझो हमारी यात्रा शुरू हो गई. बिल्कुल ठीक है. सोक्रेटिस ने भी यही कहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान करना है. तो ये हमारे अंदर जाने की जो यात्रा है, उसे हम ध्यान के माध्यम से कर पाते हैं. ध्यान एक टूल है, एक स्किल है. मेडिटेशन एक स्किल है. जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, ड्राइविंग सीख लेते हैं, द सेम वे मेडिटेशन इज अ टूल, इज अ स्किल. वो है हमारे अंदर, इनबिल्ट है. देखिए, बचपन से आप कुछ भी करते आए हैं, आपको बोला जाता है ध्यान रखना, ध्यान से करना, है ना. सब चीज़ों में आपने ध्यान रखा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाए. बिल्कुल. जहाँ ध्यान नहीं दिया वहाँ आपको फेल्योर मिली. जब कुछ मिलता नहीं है तब हम बोलते हैं कि हाँ मेरा ध्यान नहीं था शायद. तो ध्यान तो हमारे अंदर है ही, हम उसे महसूस भी करते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उसका यूज़ भी करते हैं. मटीरियल चीज़ों के लिए करते हैं. अगर हमें कुछ एग्ज़ाम देनी है, कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो उसके लिए हम उनके बारे में सोचते रहते हैं. So keep on meditation upon something is meditation. वही ध्यान है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्मा के आपने कुछ समझाने की कोशिश की है कि गॉड जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी है, जिसमें लाइट एंड साउंड होती है. नहीं, क्योंकि कुछ लोग, मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि जो किसी धर्म को मानता है कि उनका जो फाउंडर था वही गॉड है. मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है, जो मैंने स्टडी किया, जब मेरा एक्सपीरियंस है कि देखो, जैसे हम माने कि फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म, उनके जो फाउंडर थे गुरु नानक साहब थे, वो उनका जो बर्थ था वो अबाउट 500 to 600 years ago. इसका मतलब उससे पहले परमात्मा नहीं था. इसी तरह अगर हम मोहम्मद साहब की बात करें, वो अबाउट 1500 years ago पैदा हुए, उसके बाद भी अल्लाह तो था. तो इसका मतलब अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें, वो 2000 साल पहले हुए, तो जीसस क्राइस्ट से पहले भी तो परमात्मा था. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो परमात्मा है,
जो गॉड है, इससे क्वेश्चन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो है पावर, जिसमें लाइट भी है, साउंड भी है, राइट। तो जब हम, क्योंकि वो हमारे लाइट एंड साउंड अंदर है, जितनी भी बाहर हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी मंदिर में जाते हो तो वहां पर दिया जलाया जाता है, लेकिन जो दिया है उसमें जब तक हम तेल डालते रहते हैं, जो बत्ती है तब तक चलती है। वो जो हमारे ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, देवी देवता आए थे, उन्होंने समझाया, नकल बताई कि ऐसा होता है अंदर जोत, लेकिन वो जो जोत है उसको किसी बत्ती की और तेल की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में नहीं, बिल्कुल सही। if you want to elaborate more thing, I think yeah, that's why we are taking a supposition of divine light in our heart, कि हमारे जो सोल है, परमात्मा जो है, हमारी आत्मा है, वो एक दिव्य ज्योत है, दिव्य प्रकाश है, वो हमारे हृदय के अंदर है और उसे हमें महसूस करना है। तो वो महसूस करने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके 1 घंटे के लिए बैठना है। दरमियान में जो विचार आते हैं उनको अनवांटेड गैस की तरह इग्नोर करना है। विचार जो आते हैं उनके और विचार नहीं करना है बस, और आंखें बंद करके बैठे रहना है। तो ये जो 1 घंटा है ना, हम विचारों को रेगुलेट करते हैं। शुरुआत में अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे वो जो थॉट का फ्लो है ना, वो कम होता है और धीरे धीरे हम शांत होने लगते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? हमें मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठना क्यों ज़रूरी है? अगर हम खुली आंख से बैठेंगे तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उस सब के विचार आएंगे और विचार के फ्लो बढ़ते जाएंगे। उसको अगर हमें कम करना है, आंखें बंद करके हम बैठते हैं, फिर भी विचार आएंगे। तो उसके लिए जैसे भूत है, उसको एक काम पे लगा दो, वो करता रहेगा, जब ज़रूरत पड़ी बुला लो। ठीक उसी तरह अपना मन जो है उसको हम ये सपोजिशन पे लगा देते हैं कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है, उसे देखना है, उसे फील करना है, उसको अनुभव करना है, बस। हाँ जी मीनल जी, तो क्योंकि आपकी इतनी प्यारी बातें हैं, वैसे भी हम रूहानियत तो वैसे ही आनंद आता है ना, हर आदमी का डिफरेंट फील होता है। को शराबी को महफिल में जाकर वो आनंद आता है, तो जो जिसकी आत्मा थोड़ी सी डोमिनेट कर रही है उसको स्पिरिचुअल बातों होता है पर इंटरेस्ट होता है। तो क्योंकि हमारा टाइम इज ए बिग फैक्टर है ना, टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा। मैं चाहता था कि और आपसे डिटेल में बात करूंगा, फिर भी तो कभी आपको सिर्फ 2 मिनट में हमारे पास 2 सेकंड ही है टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हम आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टाइम इज ए बिग फैक्टर। हम अगर हम करेंगे भी बात, वो टीवी में कट जाएगी, वो लाइव शो हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। अब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच अगेन। सपना जी आपका भी, आप सपने में ना रहा करो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहो। थैंक यू वेरी मच। हम फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे बात करने की, तो शो के बाद भी हम डिस्कस कर सकते हैं बातें। सो नाज़रीन थैंक यू वेरी मच। आज हमने डिटेल में स्पिरिचुअलिटी की बात की है कि मेडिटेशन क्या होती है, हाउ टू डू मेडिटेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम और डिटेल में बात कर लेंगे। देन तब तक थैंक यू वेरी मच। रब राखा। Thank you.